Welcome everyone. In previous video we have solved exercise 5.1. We have solved some of the questions. Now we are going to solve remaining ones. Okay. So what we have given, question number 4 is express the following using laterals. So we have to write this in lateral forms. Okay. The cost of one atom is X rupees. The cost of n atoms is. Okay. So if अगर हम कोई एक पेन लेते हैं और उसकी प्राइस 5 रुपये में है तो कितने रुपए होंगे उसका टोटल कॉस्ट 5 इंटू 1। अगर हम 2 पेन लेते हैं तो कॉस्ट कितनी होगी 5 इंटू 2। वैसे अगर हम 100 पेन्स लेंगे 5 रुपीज़ वाली तो हमारा जो टोटल कॉस्ट कितना होगा 500 का होगा। क्या होगा 500। ओके। सो हियर वी कैन राइट if cost of one atom is X rupees and we purchase n items, so cost is rupees X into n. Our cost is X into n. What we have given, twice a number decreased by 11. So twice a number, you can use any variable. Twice a number, I am taking Z. Twice a number means 2 times Z. Decreased by कितने से कम किया है 11 से कम किया है, मतलब subtraction -11. Okay, that's how you are going to solve remaining one. क्या बोला है 1/3 of a number added to 7. 1/3 of a number, 1/3 means 1/3 and a number is taking B. I am taking B, you can take anything you want. एडेड टू 7, कितने में ऐड किया है इस नंबर को 7 में ऐड किया। ओके, सो 7 प्लस 1/3 B. ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. लेट्स सी व्हाट वी हैव गिवन. मायरा इज 4 years ओल्डर देन हर ब्रदर अभिनव. मायरा क्या है, अभिनव से 4 साल बड़ी है. So we have to write an expression for Myra's age in terms of Abhinav's age. मतलब अभिनव की एज का यूज करके हमें क्या करना है, मायरा की एज निकालनी है. तो पहले तो हमें अभिनव की एज पता होनी चाहिए, वो हमें पता नहीं है. तो जब हमें कुछ पता नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, उसकी जगह वेरिएबल लेते हैं या फिर लेटर्स लेते हैं. सो लुक क्वेश्चन नंबर 5, हम क्या कहेंगे, लेट what we have given, Abhinav's age is X years. Abhinav's age is X year. So what we have given, Myra is older than her brother Abhinav by 4 years. तो मायरा 4 साल से बड़ी है. बड़ी है मतलब क्या आएगा, देखो कि therefore Myra's age इज इक्वल टू अभिनव की एज में कितना मिलाना पड़ेगा, एज प्लस 4. सो अभिनव्स एज इज X year प्लस 4. सो मायराज एज इज देयरफॉर मायराज एज इज X plus 4 years. This is how we are going to write Myra's age in terms of Abhinav's age. So we have write Myra's age by using Abhinav's age. Suppose if Abhinav is of 10 years old, so Myra would be 10 plus 4 means 14 year old. Okay, let's see next question. Question number 6. What we have given, Sohal purchased the 5 pens each of rupees Y. सोहल ने क्या किया है, 5 पेन परचेस किए हैं. एक पेन की वैल्यू कितनी है, Y रुपीज. इफ शी गेव 500 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर, फाइंड द अमाउंट शी विल गेट बैक.
और उसने क्या किया है, 500 की नोट दी है शॉपकीपर को, तो उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे ये हमें देखना है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेन की कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ वन पेन, वन पेन इज y rupees. तो therefore cost of 5 pens will be is rupees 5 into y, that is 5y. ओके, अब इसने सोहेल ने क्या किया है, 500 की नोट दी है किसे, शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर इसे पैसे वापस देगा। समझो मैं 10 रुपए की चीज खरीदता हूं और मैंने 50 की नोट दी है किसी को, 50 रुपीज की नोट दी है शॉपकीपर को, तो वो मुझे कितने रुपए वापस देगा, 50 रुपीज में से वो 10 रुपीज माइनस करेगा और 40 रुपीज मुझे वापस देगा, राइट। सो अमाउंट she get back is equal to what, 500 रुपीज, 500 उसमें से ये कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा 5x, so this is our answer. Okay, let's see next one what we have given. Rehan covers 35 meter in 1 minute. Express the distance covered by him in t minutes. So 1 मिनट में रेहान क्या करता है, 35 मीटर्स कवर करता है. What we have given, रेहान covers 35 meter in 1 minute. So in t minutes he will be covering t into 35. Okay, so we have to just multiply. Therefore Rehan covers कितना, 35 into t means 35t meters in t minutes. t मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 35t मीटर्स. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. लास्ट वन, व्हाट वी हैव गिवन, Simran arranges 12 chocolate in a row in a given box. If the number of rows are z, write the rule that gives the total number of chocolate. So एक बॉक्स है, उसमें सिमरन ने क्या किया है, चॉकलेट लगाई है 12 चॉकलेट एक रो में, मतलब यहां एक ऐसे करके कितनी 12 चॉकलेट लगाई है. और ऐसी कितनी रोज है, z रोज है. एक रो में 12 चॉकलेट है, वैसी z रोज है. तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन वन रो इज इक्वल टू 12. देयरफॉर नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन z rows is 12 into z, that is 12z. So our rule will be 12z. Okay. I hope you all understood this. Thank you.